उस पर रिएक्शन था, बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please, one at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill, sir. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition. That you cannot
run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. क्या पहले आप लोग की मांग ये रही कि पीएम पहले माफी मांगे उसके बाद ही आप लोग चर्चा में हिस्सा लेंगे या उसके बिना कोई रास्ता? देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा. हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे. मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं. कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. तो राहुल गांधी ने संबोधित किया लोगों को और कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी. प्रधान का जाना अच्छा है, लेकिन ये लड़ाई जारी है और जहां पर भी छात्रों को हमारी जरूरत है, हम छात्रों के साथ रहेंगे. शिक्षा व्यवस्था को बदलना ही होगा, ये छात्रों की जीत है. तो हमारे साथ तमाम हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं. आरपी सिंह जी, राहुल गांधी को आपने सुना, कहा कि लड़ाई जारी रहेगी और जिस तरह से कब्जा किया शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने, उसको धर्मेंद्र प्रधान का जाना तो बस एक शुरुआत है. आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोकतंत्र के अंदर उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, परंतु अभी वो कह रहे थे कि मैं आपके साथ हूँ, परंतु 21 दिन तो विदेश में थे साथ के समय में, और उसमें भी जंतर मंतर में एक दिन भी जाना नहीं हुआ. अपनी तरफ से अलग से अपनी बजाने की कोशिश करते हैं. परंतु ठीक है, मैं फिर भी कहूँगा लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वह लोकतंत्र के अधिकार के अंदर कुछ भी करें, उनको छूट है. परंतु एक बात समझ लीजिए, ये जो युवकों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करें, वो आज सफलता दिखती है कि सफल नहीं होगी उनकी प्रयास. वो आज उस ढंग से उसकी दिशा में हुई बात, क्योंकि मैं देखता था किस प्रकार से पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज युवकों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे थे. जिस प्रकार से वो एक घटिया सा आदमी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने भी ये कोशिश करी, घटिया कोशिश करी कि मेरी बात होगी, मैंने पैसे दिए. वो गलत बात है. इसी प्रकार से इनसे भी ये था कि आप अपनी बात करिए ना, आप रिफॉर्म्स की बात करिए. मैं तो अब भी कह रहा हूँ, अब कल आएगा उसमें रिफॉर्म्स में चर्चा करें, डिबेट करें, उसमें भागीदारी करें. पिछली बार की तरह पार्लियामेंट से गैप ना हो जाए, उसमें लाभ होगा, उसमें देश को भी लाभ होगा, युवकों को भी लाभ होगा. बस की सिर्फ ये कहना कि नहीं हम तो छात्रों के साथ हैं, छात्रों के लिए करेंगे क्या, इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए. जी, सुरेंद्र राजपूत, छात्रों के लिए क्या करेंगे, जोर इस पर होना चाहिए और सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए इसमें. बिल्कुल सही कहा आरपी सिंह साहब ने. मैं सहमत हूं कि सकारात्मक बात होनी चाहिए. और ये जो जेनजी है, कहते हैं ना कि अपने हक की हिफाजत जानती है, ये नई नस्ल है, बगावत जानती है. अभी तो शुरुआत इस बात से होगी आरपी सिंह साहब कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बताएं कि आखिर वो कौन से कारण थे
कि छात्रों को पिलेट गन से मारा गया, उन पिलेट गन से जिन पिलेट गन्स को आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएंगे कि क्यों मारा गया छात्रों को, क्यों मारा गया उन छोटी छोटी लड़कियों को, क्यों उनके कपड़े खींचे गए, क्यों उनको घेर करके मारा गया? ये सारी बातें भी अभी लेकिन अब जो है ना, बात उसके आगे की भी है, रिफॉर्म्स की भी बात है कि अब सदन में क्या सकारात्मक भूमिका निभाएगी विपक्ष, या सिर्फ राहुल गांधी ये कहकर चले जाएंगे कि हम छात्रों के साथ है, आगे करेंगे क्या? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, श्रेय ले रही है कांग्रेस। निवान शर्मा, मुझे 5 सेकंड का आऊंगी वापस, 1 मिनट, सबको मौका मिल जाना चाहिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं ये। हाँ बहुत निवान जी। और देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा हमें श्रेय चाहिए। हाँ, हम हमेशा से युवाओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जो है बहुत ही एक अच्छा दिन है और बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज जनता को ये महसूस हुआ है कि जब जनता चाहेगी तब तक अगर सरकार गलत निर्णय ले रही होगी तो उसको पलटवाएगी। आज सरकार ने पूरी कोशिश करी। 2024 से जो है पेपर लीक का सिलसिला जो है वो न्यूज में आया था। 2024 से लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाया जा रहा था। जब तक युवा सड़क पे नहीं उतरे, जब तक 100 मिलियन रील्स नहीं बनी कि वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, तब तक नहीं हटाया गया, तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सरकार की नीति नहीं थी उनको हटाना। आज भी हटाने के बाद जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि पूरी भाजपा धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ है। तो ये क्या आप उनके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? आप आज दबाव में उनका इस्तीफा तो ले रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा नहीं है उनको हटाने की। तो इससे ये पता लगता है कि भाजपा जो है वो शिक्षा की बात नहीं करना चाहती। आज इन युवाओं ने आगे का जो कोर्स ऑफ नहीं, पर एक विपक्ष के तौर पे क्या अब आप लोग पार्लियामेंट में इंश्योर करेंगे कि सरकार इस मुद्दे पे बात करे और पार्लियामेंट का, सदन का समय बर्बाद ना हो, कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो, रिफॉर्म्स की बातचीत हो? ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि बात हंगामे में खत्म ना हो जाए सिर्फ। एब्सोल्युटली। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये एक तरह से हमारे देश की राजनीति का युग परिवर्तन है। जहां पर अभी तक धर्म और जाति पे राजनीति कर रही थी बीजेपी, अब जेनजी ने ये डिसाइड कर दिया कि इससे आगे की राजनीति शिक्षा पे होगी। एक बात जो अभी कहा ना आरपी सिंह ने कि क्या विपक्ष जो है वो युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, क्योंकि बात पूरी मूवमेंट उन्होंने लीड की, अब श्रेय सब लोग ले रहे हैं। वैसे मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी मौजूद थे वहां पर जहां पर राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सब पहले चलते हैं मनोरंजन के पास। लगता है जैसे कि श्रेय ले लिया है विपक्ष ने, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि युवाओं के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। अब आगे ये देखना है कि क्या कंस्ट्रक्टिव रोल निभाएगी विपक्ष रिफॉर्म्स में। मनोरंजन, देखिए, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये इस्तीफा तो होना ही था। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल थे, कंक्रीट स्टेप सरकार को उठाने होंगे शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। और लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री को तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और साथ में कहा कि सोमवार को संसद में क्या होगा ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। 10 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उनके कमरे में जो विपक्ष की मीटिंग होती है जिसमें सभी विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी, खड़गे साहब और बाकी जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो के नेता मौजूद रहते हैं, उसमें तय होगा कि सदन की कार्रवाई आगे कैसे चलेगी। क्योंकि सवाल बार बार उनसे यही पूछा जा रहा था कि सोमवार को सरकार वो बिल लाने वाली है जिसमें कि काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं नीट में पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक के लिए जो प्रावधान है उसको काफ़ी कड़ा किया गया, वो बिल सोमवार को ही आना है। तो अभी ये जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस या विपक्ष उसमें हिस्सा लेगा, तो वो कुछ भी कहने से राहुल गांधी साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते, सोमवार को ही बताएंगे। तो निश्चित रूप से अभी भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि सोमवार को कार्रवाई चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद शायद जो आप देखें कि उस बिल को लेकर के चर्चा जो है सोमवार को शुरू हो, और उसके बाद के आने वाले दिनों में अन्य मुद्दा उठाने के लिए। और यहाँ पर और क्या हो रहा है इस वक्त, खबर ये भी है मनोरंजन की कैंडल मार्च भी होने वाला है यहाँ पर से कांग्रेस का। अभी देखिए तैयारी चल रही है, आपने सही मौके पे पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैंडल मार्च अभी जो है वो तैयारी हो रही है।